हेलो गाइस। हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज पे। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको पाइथन की EXE फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप क्रोम पे जाना, पाइथन डाउनलोड लिखना, तो आपको फर्स्ट लिंक जो भी आएगा उसमें डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, ये पाइथन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना। फिर आप इसको इंस्टॉल कर लेना, राइट क्लिक करके रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करके आप इंस्टॉल कर लेना इसको। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको पाइथन में काम करने के लिए आप दो जगह पे काम कर सकते हो, यूपिटर नोटबुक या फिर कोलैब में। तो यूपिटर नोटबुक पे काम करने के लिए आप सिंपल स्टार्ट पे लिखना CMD। तो आप CMD जब लिखते हो आपके पास ऐसे एक प्रॉम्प्ट खुलता है, कमांड प्रॉम्प्ट से आप यहाँ पे सिंपली लिखो यूपिटर नोटबुक। व्हेन यू राइट यूपिटर नोटबुक आपको ये ओपन कर देगा यूपिटर नोटबुक से ये। सो इसको खोलने के बाद ये जैसे ये खुल गया, इसको खोलने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, पाइथन 3 नोटबुक खोल लेना। पाइथन 3 नोटबुक खोलने के बाद आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हो। सो फर्स्ट लेक्चर हमें पाइथन के लिए जानना चाहिए सिंटैक्स ऑफ पाइथन। पाइथन में कुछ भी काम करने के लिए आपको, सपोज आपने ये लिखा x इज इक्वल्स टू 5, देन आपने लिखा प्रिंट x, तो इट विल प्रिंट दिस 5। ठीक है। इफ यू आर राइटिंग प्रिंट टाइप ऑफ x, अगर आपको टाइप जाननी है, दिस इज इंटीजर। So if you want to print any English sentence, you have to give that in double quotes like this. I am giving print in brackets, I am giving hello world in double quotes. Likewise, you can give any name. Reshma. So you can execute this. You can see hello world and Reshma. Similarly, if you want to execute print statement with if, then you can execute like if 5 is greater than 2, you want to print 5 is greater than 2 in a statement, right? So if we run this, 5 is greater than 2. If we are using if, so we need to put colons here. If you notice this, we are using colons. If we are using if, then the condition, then colons, then print statement. Then for using the comment, if you want to comment some line, how can you do that? By using hash. This is a comment. This is single line comment. If we want to comment any line in between our code, or we want to use some references in between the code, then we can use hash to comment that line. Okay. So if we are doing x is equals to 5, y is equals to hello world, and here I want to put some comments, then print line. So this is how I can use with using the hash. Then if you want to comment multiple lines, then you cannot use hash in front of every line. So how can you do that? By using 3 apostrophe commas. 3 commas you can use. By using 3 commas at the start and 3 commas at the end of the paragraph, you can do multi-line comments. Then we are using x variable and allocating value 5, and in y we are allocating in double quotes a string. Then we are printing value of x and y. Okay, so the type of x is integer and the type of y is string. Now if you are using this, we can see x is equals to 5, y is equals to John. So we are printing x and y here. This results, if we comment this like this, okay,
This is the starting comment. This is the ending. So if we are using only this, we can see 5 and John. This is the comment statement, commented statement. Okay. Now if we put comments here at the starting and ending here, and then we are removing this. Now we are printing value x is equals to 4. Okay, so comment this statement, then x is equals to 4. If we comment this and we want to print Sally in x, then we can use like x is equals to Sally, string value always give in double quotes, and print x then Sally. Now we want to typecasting. Here we have value 3. We want to print it as a string. So we should give here str in front of anything if we want to typecast the number. So we are typecasting x. Let's print x. You will see it will be like string. Let's see the type of string. Type of x is string. And we are modifying here also. We are modifying 3 to float in z variable. So let's print the type of, let's print z first, then the type of z. So you can see it will be like 3.0. Okay. Then if we print the type of z, let's print type of z here. We can see class float. Similarly, we can print the type of y also. So you can see it is integer. Okay. Now let's check the type of these things. X is equals to 5, y is equals to John. This is the string, this is the integer. Let's check it out. Class of x is integer and class of y is string. Then we can, here we are trying to show we can give string in double quotes also and single quotes also. Let's print the value of x from here first, and then type of x also. Print type of x. Okay, let's comment this. So you can see John and class string. Similarly, print these statements here and comment this. This is also same, John, class string. Next, a is equals to 4 and capital A is Sally. So here I want to show small a is different variable. Capital A shows different variable. Capital A will not overwrite A. Let's print these values. Print A, 4, print capital A, it will be Sally. Okay. So the importance of variables, I think, clear from here. We can give any variable name, small a, capital A, small x, capital X. It will be different. Okay. One more important thing in variables. This is multi-words variable names. So यहाँ से आपको interview questions आ सकते हैं. What is camel case? If we pass this, each word except the first and starts with the capital letter. Camel case का मतलब है first word आपका कैपिटल से स्टार्ट होगा. ओके. जैसे कि कैमल केस, हम यहाँ पे आप अगर कैमल केस का मतलब है माई वेरिएबल नेम, ये है आपका वेरिएबल, ठीक है, माई वेरिएबल नेम, तो आपने वी एंड एन को कैपिटल रखा है यहाँ पे, ये आपका होता है कैमल केस. अगर आपको बोला जाए पास्कल केस, पास्कल केस का मतलब होता है हर वर्ड
कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, माई का एम, वेरिएबल का वी, नेम का एन। ओके, अगर आप यहां से डिफरेंस देखोगे तो फर्स्ट वर्ड आपका स्मॉल था कैमल केस में, सेकेंड वर्ड वी का, वेरिएबल का वी कैपिटल था, नेम का एन कैपिटल था। बट पास्कल केस में हर एक वर्ड कैपिटल होता है, फर्स्ट वर्ड माई, वेरिएबल का वी, नेम का एन। और स्नेक केस में क्या होता है, हर वर्ड सेपरेट विद द अंडरस्कोर। सो दिस इज द टाइप, you can give variable in any type, but यहाँ से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस। और इनिशियल लेवल पे आई थिंक कॉलेज में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज कैमल केस, व्हाट इज पास्कल केस, व्हाट इज स्नेक केस। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, कैमल केस में इनिशियल वर्ड स्मॉल होता है, नेक्स्ट वेरिएबल का वी कैपिटल, नेम का एन कैपिटल। पास्कल में ऑल स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं, स्नेक केस में अंडरस्कोर से सेपरेट करते हो आप। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे देते हैं। सो अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, एक्स वाई जी में आप कैसे दोगे, मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यूज देना चाहते हो, ये मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ऑरेंज, बनाना और चेरी आप दे रहे हो। तो इसको प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से आप नया सेल ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप अगर प्रिंट करते हो मल्टीपल वेरिएबल्स एक्स वाई जी, ऑरेंज, बनाना और चेरी आप वैल्यूज दे रहे हो, इसको प्रिंट कर रहे हो इसको, तो यू कैन सी प्रिंट एक्स में ऑरेंज आ गया, प्रिंट वाई में बनाना आ गया, प्रिंट जेड में चेरी आ गया। ओके, देन इफ यू वांट टू गिव then if you want to give one value to all the variables, how you will do, x is equals to y is equals to z is equals to, डबल कोट्स में आप वैल्यू दे दो ऑरेंज, then print all these variables, so you can see orange, 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 all the values are same. Okay, moving on the next thing, if you want to unpack a collection, so how you will do that, suppose you have a list of fruits, apple, banana, cherry. Okay, you want to give these values to individual x y z variable, तो आप ऐसे दोगे, फ्रूट्स में आपके पास लिस्ट है, देखो आपके पास फ्रूट्स में एक लिस्ट है, लिस्ट आप कैसे देते हो, डबल कोट्स में डिक्शनरी वेरिएबल्स, ये क्लोज ब्रैकेट्स ओपन करके इसमें आप वेरिएबल्स दे देते हो, एप्पल, बनाना, चेरी, स्ट्रिंग वैल्यू ऑलवेज गिव इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, एनीथिंग। देन आपने तीन वेरिएबल्स ले लिए एक्स वाई जी, आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर दोगे, एक्स वाई जी को, एक्स वाई जी को अगर आप प्रिंट करोगे तो आपके यहाँ पे एक्स में एप्पल आएगा, वाई में आपका बनाना आएगा, जेड में आपका चेरी आएगा। सो यू कैन सी एप्पल, बनाना, चेरी, आप ये अनपैक कर रहे हो एक कलेक्शन को, लिस्ट, डिक्शनरी, आप किसी को भी अनपैक कर सकते हो इन दिस वे, टपल, ठीक है, हम आगे जाके जानेंगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सब में क्या डिफरेंस होता है, बट फॉर नाउ आप किसी भी लिस्ट को, किसी भी चीज को ऐसे अनपैक कर सकते हो उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स देके। ओके, देन अगर आप ऐसे देते हो आउटपुट, दिस इज सिंपल, सो पाइथन इज ऑसम, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज वन लाइन, सो आपने अगर इसको x में प्रिंट करा, आपका सिंपल आ जाएगा पाइथन इज ऑसम, इसका आउटपुट। अगर आप ये करोगे, इसको ब्रेक करके अलग अलग वेरिएबल्स में दोगे, तो आपका एक्स वाई जी का वैल्यू आ जाएगा, प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, आप ऐसे करके प्रिंट कर सकते हो मल्टीपल वेरिएबल्स को। सी, यू कैन प्रिंट लाइक दिस, पाइथन इज ऑसम, ये भी एक लाइन ही बना, प्रिंट तो एक लाइन में ही हुआ ना, आप एक लाइन में भी दे सकते हो, अगर ब्रेक करके दे रहे हो तो आपको प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जी करना पड़ेगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर आप ऐसे प्रिंट करते हो तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। और अगर आप इसको प्लस के साइन से देते हो, सपोज ऐसे देते हो, तो आपका बीच में स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे आपका स्पेस आ गया एक्स वाई जी में, बट यहाँ पे आपका प्लस में स्पेस नहीं आता है। ओके, यही दोनों में डिफरेंस है, एक्स वाई जी अगर आप कॉमा के साथ सेपरेट करते हो
और प्लस के साथ सेपरेट करते हो। नाउ अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 2, देन आपने सपोज x प्लस वाई को एक नए वेरिएबल में ले लिया, x प्लस वाई, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, देन प्रिंट करो आप z का वैल्यू, तो आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यू कैन सब्ट्रैक्ट x माइनस वाई, 3 आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट मतलब कि आपको 5 पार्ट 2 करना है, तो आप कैसे करोगे, डबल ये देख के, डबल मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो 25 आ जाएगा। 5 पार्ट 2 इज 25। दीज आर द फंक्शंस यू कैन गिव। अगर आप इनवैलिड चीज देते हो, सपोज यू आर गिविंग हेयर जॉन, ओके, यू आर गिविंग हेयर इंटीजर एंड हेयर स्ट्रिंग, तो आपका यहाँ पे एरर आएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स, इंटीजर एंड स्ट्रिंग सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, क्लियर है। देन अगर आप कंबाइन इसको प्रिंट करना चाहते हो दोनों चीजों को, तो आप ये प्रिंट कर सकते हो वेरी इजीली। आप सपोज ऐसे दे रहे हो इंटीजर और स्ट्रिंग कॉमा के साथ सेपरेट करके, तो आपका 5 जॉन आ जाएगा। प्लस करोगे तो स्पेस नहीं आएगा, कॉमा करोगे तो स्पेस आएगा बीच में।